اور یہی وجہ تھی کہ آرمی کو آپریشن 2 سے 3 دن میں ختم کرنا پڑا۔ 1955 میں پہلی بار پولیس گولڈن ٹیمپل میں گھستی ہے۔ نہرو جی نے سکھ کو ایک الگ اسٹیٹ دینے کا وعدہ کیا اور پھر وعدہ کر کے مکر گئے۔ اور یہیں پر انٹری ہوتی ہے ایک ایسے انسان کی جو پنجاب کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ 23 ستمبر 2022 کو امرتپال سنگھ کی انٹری ہوتی ہے انڈیا کے اندر۔ ہزاروں سکھوں کو مارا گیا دہلی میں، 100 سے زائد سکھوں کے گردوارے جلا دیے گئے۔ ناظرین، انڈیا میں کچھ عرصے کے بعد خالصتان کے نعرے کیوں لگ جاتے ہیں؟ جیسے ہی پنجاب میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں خالصتان کے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ بھنڈروانے کی ڈیتھ 1984 میں ہوتی ہے، مگر ابھی بھی ان کا ریفرنس لیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ابھی جو امرتپال سنگھ کا معاملہ ہے اور جو کچھ انڈیا کے اندر ابھی ہو رہا ہے وہ ڈسکس کریں، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس خالصتان تحریک کے پیچھے کے ریزنز کیا ہیں۔ పంజాబ్లో ఖలిస్తానీ నినాదం బలం పుంజుకుంటుందా? హజ్నాలా పోలీస్ స్టేషన్ పై దాడి ఘటన దేనికి? అమృత్పాల్ సింగ్ అతనికి బిందె Sympathizer Amritpal Singh, the chief of Varis Punjab Day, has given a chilling wave threat to the Prime Minister and also to the Home Minister, and a gruesome reminder to Indira Gandhi's assassination over جب پہلے لاٹھی چارج شروع کیا، سامان رکھنے کی اگر بات ہے تو پھر تو یہ کچھ ہوتا ہی۔ میں نے کال دی، لیکن سکھی کو ڈیفائن کرنا پرابلم یہی ہے۔ ناظرین، پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے برٹش دور کی بات کریں تو قریب 1923 کے قریب سکھوں کے پاس اپنا ایک الگ ملک تھا جس پر مہاراجہ رنجیت سنگھ حکومت کر رہے تھے۔ تب تک مہاراجہ رنجیت سنگھ رول کر رہے تھے تب تک برٹش نے کوئی اٹیک نہیں کیا، مگر جیسے ہی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوتی ہے اور سکھ امپائر تھوڑی ویک ہوتی ہے تو برٹش نے سکھ امپائر پر حملہ کر کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لی اور ہریانہ کو سکھ امپائر میں ضم کر دیا۔ رنجیت سنگھ کے بچوں کو تعلیم کے بہانے برطانیہ میں منتقل کر دیا، اس لیے پیچھے کوئی بچا نہیں جو سکھ امپائر کو ریپرزینٹ کرتا اور سکھ کمیونٹی کی قیادت کرتا، اور جو باقی لوکل گردوارے کے پجاری تھے انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا گردوارے کا، اور یہ چیز سکھوں کو پسند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے 1920 میں سکھوں نے اکالی دل موومنٹ شروع کیا اور برٹش سے مطالبہ کیا کہ گردوارے یہ پجاری نہیں چلا سکتے۔ تو سکھوں کے اس مطالبے کی بنیاد پر برٹش نے 175 ممبرز پر مشتمل ایک کمیٹی بنیاد جسے SGPC کے نام سے جانا جاتا ہے۔ SGPC نے گردواروں سے پجاریوں کو ہٹایا اور ریگولیٹ کیا، اور آج بھی یہی لوگ ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ان کے پراپر الیکشن ہوتے ہیں اور پھر صدر بنائے جاتے ہیں۔ SGPC پارٹیکل ٹائم سے ہی سکھوں کے فرنٹ فیس بنا۔ اکالی دل اور SGPC میں کافی کلوز ریلیشن اس پارٹیکل ٹائم سے ہی ہے۔ سکھ امپائر کافی امیر اور تگڑا امپائر تھا۔ برٹش نے قبضہ تو کر لیا، سکھوں کا یہ ماننا تھا کہ قبضہ ٹیمپریری ہے، یہاں سے جب بھی یہ ہٹیں گے تو ان کو ان کا سکھ امپائر واپس مل جائے گا۔ لیکن اس یقین کو پہلا جھٹکا تب لگتا ہے جب 1929 میں موتی لال نہرو نے پورنے سوراج موومنٹ شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک آزاد ملک بنے گا جس میں ووٹنگ ہوگی اور ڈیموکریسی کو فالو کیا جائے گا۔ ناظرین، سکھ کمیونٹی یہ سوچ رہی تھی کہ جب آزادی ملے گی تو ہمارا سکھ امپائر ہمیں واپس مل جائے گا۔ اس پورنے سوراج موومنٹ کو سن کر سکھ کمیونٹی میں کافی بے چینی تھی۔ آزادی سے کچھ عرصہ قبل جب برٹش کی جانے کی باتیں ہو رہی تھی تو سکھوں نے آواز اٹھائی کہ انگریزوں نے دھوکہ کر کے سکھوں سے پنجاب چھینا تھا، اس لیے جب وہ جا رہے ہیں تو پنجاب ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ انگریز نے کہا کہ پہلے کس کے پاس کیا چیز تھی یہ میٹر نہیں کرے گا، بلکہ اب تقسیم نمبرز کے اعتبار سے ہوگی۔ اب دیکھیں گے کہ پاپولیشن میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ 1941 میں پنجاب میں ایک سروے ہوتا ہے جس میں مسلم 53%، ہندوز 30%، سکھ 15%، اور ناظرین سکھ اس وقت انڈیا کی آبادی کا صرف 1% تھے۔ تو یہاں نمبر گیم میں سکھوں کو الگ ریاست ملنے کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا تھا، اور یہ بات سکھ کمیونٹی بھی بڑی اچھی طرح سے جانتی۔ اسی وجہ سے سکھوں نے یونائٹڈ انڈیا کا انتخاب کیا، اور یہاں پر وہ اس امپریشن میں تھے کہ انہیں ایک الگ ریاست ملے گی۔ تو جیسے ہی آزادی کا وقت قریب آیا تو مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ سامنے رکھ دیا، انگریز سے پارٹیشن کی بات کر دی۔ اب سکھ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر پارٹیشن ہوگی تو پنجاب کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے سکھوں نے بھی ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا کہ دیکھیں اگر مسلمز کو پاکستان، ہندوز کو ہندوستان، تو پھر ہمیں بھی سکھستان چاہیے۔ اسی لیے شرومنی اکالی دل نے اسی ٹائم پہ ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں انہوں نے سکھستان کا مطالبہ کیا، مگر جواہر لال نہرو نے سکھوں کو سمجھایا اور کہا کہ پنجاب کے بہادر سکھ ایک اسپیشل کنسیڈر کو انٹائٹلڈ ہیں، اور کہا کہ اس کو میں غلط نہیں کہتا کہ انڈیا کے نارتھ میں ایک ایسا علاقہ ہونا چاہیے جہاں کے سکھ آزادی سے رہ سکے۔ اس اسپیچ کو سن کر بہت سارے سکھوں کو لگا کہ جواہر لال نہرو نے ہمارے لیے ایک الگ ملک
की बात की है और बाद में हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन इस सब के बावजूद बंटवारा होता है और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जो कि करीब 62% होता है वो पाकिस्तान में चला जाता है और सिखों के बहुत सारे गुरुद्वारे, तारीखी मकामात, काफी सारी आबादी पाकिस्तान में ही रह जाती है। इसलिए सिख अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया आना शुरू हो जाते हैं। पहले तो इनकी तादाद काफी कम थी, मगर जब पाकिस्तान से सिख आए तो इनकी तादाद काफी बढ़ गई और पंजाब में ये मेजोरिटी में आ गए, जिससे सिखों का जो एक अलग रियासत वाला ख्वाब था वो फिर से उन्हें पूरा होता नजर आने लगा। और बंटवारे के बाद सिख कम्युनिटी गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसियों से खुश न थी। इन्हें लगता था कि गवर्नमेंट हमारे साथ ज्यादती कर रही है, इसलिए वो अपना एक अलग स्टेट चाहते थे। इसके बाद नाजरीन 1946 को इंडियन गवर्नमेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1946, इसमें यह है कि लैंग्वेज की बुनियाद पर स्टेट को तकसीम किया जाएगा। इसमें तेलुगु बोलने वाले को आंध्र प्रदेश, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र मिल गया। तो सिख कम्युनिटी ने कहा कि हरियाणा के अलावा पूरी पंजाब की जुबान पंजाबी है और लिटरेचर भी तकरीबन सारा का सारा इसी में है, तो इसलिए हरियाणा को आप हिंदू स्टेट में मिला दें और हमें पंजाबी दे दें। पंजाब में पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये मांग पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी और फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चीजें बिगड़ना शुरू होती हैं, नफरतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इस सब को देखते हुए मास्टर तारा सिंह ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और इसे अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने पंजाबी सूबा मूवमेंट शुरू कर दिया और ये तहरीक इतनी तेजी से बढ़ी कि गवर्नमेंट को पंजाबी सूबा स्लोगन बोलने वालों पर पाबंदी लगानी पड़ी। 12,000 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया और फिर 1955 में पुलिस पहली बार गोल्डन टेम्पल में घुसती है। 1960 से 1965 तक बहुत कुछ होता रहा, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, अकालीस को गिरफ्तार किया जाता है, नो एंड नेवर मूवमेंट वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। लेकिन जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान वार होती है तो सिख कम्युनिटी सारे प्रोटेस्ट रोककर हुकूमत का मुकम्मल साथ देती है। तो यहाँ से लोगों को और गवर्नमेंट को सिखों की अहमियत पता चलती है और इसी वजह से 1966 में सिखों की बात मानकर पंजाब को तकसीम कर दिया गया। नाज़रीन, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। मगर चंडीगढ़ में आकर मामला फिर से उलझ गए। चंडीगढ़ में 55% हिंदी स्पीकिंग लोग थे और तय ये किया गया कि चंडीगढ़ को दोनों स्टेट रूल करेंगे। इससे सिख बिल्कुल ही खुश नहीं थे। लेकिन नाज़रीन, अगर आपने गौर किया हो तो इन सब बातों के बावजूद पंजाब एक अलग स्टेट बन चुका था। इसके बाद पहली बार इलेक्शन होते हैं पंजाब में, अकाली दल इलेक्शन जीत जाती है लेकिन अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाती। इसके बाद फिर से जीतती है, मगर फिर यही होता है कि कुछ दिनों के बाद फिर इनकी सरकार गिर जाती है। 1997 तक एक बार भी अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाती और इसका इल्जाम लगता है कांग्रेस पर। कांग्रेस या तो मिनिस्ट्री में चेंज करवा देती है या कहीं इन्फ्लुएंस करके सरकार गिरा देती है। जैसे लक्ष्मण सिंह जो अकाली दल से जीते और फिर उन्होंने बगावत करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 13 एमरेज के साथ सरकार गिरा दी। अब यहाँ पर अकाली दल के लिए प्रॉब्लम ये था कि लोगों के जो मसाइल थे, चाहे वो चंडीगढ़ का मसला था या पंजाब में पानी का मसला, सारे मसलों में पंजाब के लोग मुसलसल हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे थे और इधर अकाली दल अपनी सरकार ही नहीं चला सकते थे। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में ये बोला जाने लगा कि ये सरकार चलाने लायक ही नहीं है। और फिर ये 1972 में कांग्रेस से इलेक्शन भी हार गए और ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका था। कांग्रेस की तरफ से पंजाब के सीएम यानी जेल सिंह बने। इन सारी चीजों को देखकर अगले साल 1973 में खुद को रीथिंक किया, लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर फिर से काम शुरू कर दिया और पंजाब के जितने भी इश्यूज थे, जैसे कि चंडीगढ़ को पंजाब में वापस लाना, पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का पंजाब में दखल बहुत ही कम होना चाहिए और इस तरह के बहुत सारे मसाइल, इन सारे मसाइल की एक रिपोर्ट बनाई जाती है और इसका नाम रखा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। इसका फर्स्ट ड्राफ्ट सरदार कपूर सिंह ने बनाया और सांत फतेह सिंह ने वर्बली सुनकर इसको इम्प्रूव किया। लेकिन 1973 में ये पब्लिक में कोई ज्यादा मशहूर नहीं हुआ। लेकिन अगस्त 1977 में यानी अजमेर सिंह जो सेक्रेटरी थे अकाली दल के, उन्होंने इसका एक अपडेटेड वर्जन शाये किया और आनंदपुर रेजोल्यूशन का ये जो वर्जन था, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी उस टाइम पर और ये अब भी हो रही है। खालिस्तानी ये कह रहे थे कि इसमें एक अलग रियासत की मांग की गई है, अलग स्टेट की नहीं। इसको हर बंदा अपने मुताबिक ही अपमानी दे रहा था। जब कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सांत हरचंद सिंह लोंगेवाल ने, जो अकाली दल के सदर थे, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज को इसकी एक एक कॉपी भेजी और कहा कि इसके जो ऑथेंटिक वर्जन है वो यही है और इसका कोई भी गलत मतलब ना निकाले। इसमें अलग मुल्क की कोई
मांग नहीं की गई है और अकाली दल ने कभी ऐसा कहा भी नहीं। नाज़रीन, सिख कम्युनिटी अपने मजहब के हवाले से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अंग्रेज भी इन्हें अपने मजहबी त्योहारों से नहीं रोक सके, जबकि मुस्लिम्स और हिंदू पर इस मामले में अंग्रेजों ने काफी हद तक काबू पा लिया था। यही वजह है कि पंजाब में मजहब पर ही सियासत की जा सकती है। मजहब पर सियासत को हर पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल कर रखा है। अकाली दल रेजोल्यूशन बहुत ही फेमस होने लगा और इसकी वजह से अकाली दल काफी मजबूत हो गई फिर से, और फिर उसने कांग्रेस से इलेक्शन भी जीत लिया। अब कांग्रेस को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो अकाली दल से ज्यादा मजहबी, और जहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसकी वजह से पंजाब की पॉलिटिक्स यकसर तब्दील होकर रह जाती है। पंजाब में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मजहब या फिर एजुकेशन पर काम करती है। इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन दमदमी तस्काल, क्योंकि ये पंजाब की तहसील मोगा के भिंडर गांव में थी, इसलिए यहाँ रहने वालों को भिंडर वाला कहा जाता है। दमदमी तस्काल के लीडर करतार सिंह भिंडर वाले की डेथ होती है। इसके बाद संत जरनैल सिंह को दमदमी तस्काल का लीडर बनाया जाता है। उन्होंने लीडर बनते ही मजहबी एक्टिविटीज करना शुरू कर दी। गांव-गांव जाकर उन्होंने नशा छुड़वाने की मुहिम शुरू कर दी और लोगों से कहा कि बाल न कटवाएं और सिख मजहब को फॉलो करें। और फिर ये बहुत ही तेजी से लोगों में इनको मकबूलियत मिलने लगी। लोग इनके पास आने लगे और आकर अपने मसले हल करवाते थे। इस सब के बीच में ज्ञानी झैल सिंह और दरबारा सिंह ने संजय गांधी को बताया कि भिंडर वाला बहुत ही मकबूल हो रहा है लोगों में, अगर हमने उसे अपने साथ मिला लिया तो अकाली दल को पिछाड़ सकते हैं। फिर आगे चलकर भिंडर वाले को कांग्रेस ने SGPC के इलेक्शन में अकाली दल के खिलाफ खड़ा कर दिया। भिंडर वाले को मजहबी बातों की वजह से लोगों में काफी मकबूलियत मिल चुकी थी और अब गवर्नमेंट का भी साथ जब मिल गया तो भिंडर वाले ने अपनी एक्टिविटीज और तेज कर दी। भिंडर वाला जो भी करता उससे कोई पूछने वाला नहीं था। किसी भी इंसिडेंट में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती थी। लेकिन 1978 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से भिंडर वाला सुप्रीम लीडर से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। 1980 में बाबा गुरबचन सिंह और इनकी बॉडीगार्ड को दिल्ली में कत्ल कर दिया जाता है। इसका इल्जाम भिंडर वाले पर लगता है मगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती। इसके ठीक एक साल बाद 1981 में इंडिया में सेंसस शुरू हो जाते हैं। इसमें जुबान के मुतालिक पूछा जाता है कि आपकी जुबान कौन सी है। सूबे में जिस भी लैंग्वेज के वोट ज्यादा होंगे उस सूबे में उसी को अहमियत दी जाएगी। तो भिंडर वाले ने सबको कहा कि आपने अपनी जुबान पंजाबी ही बतानी है, लेकिन हिंदू इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन पंजाब के न्यूज़पेपर के एडिटर लाला जगत नारायण उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदू अपनी मादरी जुबान हिंदी ही बताएं। और इस चीज को वो रोज अपने आर्टिकल में लिखा करते। फिर एक दिन उन्हें गोली मार दी जाती है और इसका इल्जाम भी भिंडर वाले पे लगता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन कुछ ही टाइम बाद हिंदू कम्युनिटी की तरफ से बोझ बहुत ज्यादा बढ़ता है तो कांग्रेस को इन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है। और ये वो पॉइंट होता है जिससे कांग्रेस और भिंडर वाले आमने सामने आ जाते हैं। इससे पूरे पंजाब में एहतजाज शुरू हो जाते हैं और हालात इस कदर खराब होते हैं कि भिंडर वाले को छोड़ना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब अकाली दल भिंडर वाले की पॉपुलैरिटी देखती है और भिंडर वाले के साथ हाथ मिला लेती है। यहाँ पर कांग्रेस का दाव उल्टा पड़ जाता है। 1982 में भिंडर वाले और अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया, जिसका मेन गोल था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाना। कई रैलियां हुई, कई एहतजाज हुए, कई बार हुकूमत ने इस पर फायरिंग तक की। नाज़रीन, इसी बीच 1982 में दिल्ली में एशियन गेम होने थे। हुकूमत इसको महफूज बनाना चाहती थी और इधर धर्म युद्ध मोर्चा भी शुरू था। तो दिल्ली में ये गेम आराम से हो जाए, अमन से हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने दिल्ली से आने वाले सिखों को चेक करना शुरू कर दिया। सिख फैमिलीज को चेक किया जाने लगा। कई सिखों को डिसरिस्पेक्ट भी किया गया। इस सब को देखकर सिख भड़क गए और उन्हें लगा कि हमारे साथ हमारे ही मुल्क में ज्यादती हो रही है। इस सिचुएशन को भिंडर वाले ने इस्तेमाल किया और बदला लेना स्टार्ट कर दिया। इस टाइम पर भिंडर वाला अकाली दल से भी बड़ा नाम बन गया था। उसने अपनी एक्टिविटीज को और भी तेज कर दिया। 22 जुलाई 1982 को पंजाब के सीएम पर कातिलाना हमला हुआ। अगस्त में एयरप्लेन को हाईजैक किया गया जिसमें 126 पैसेंजर थे। 20 दिनों के बाद फिर एक और प्लेन हाईजैक कर लिया गया। बैंकों को लूटा जा रहा था, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा था और उन्हें मारा भी जा रहा था। अक्टूबर 1983 में अमृतसर से दिल्ली जाने वाली एक बस को हाईजैक कर लिया गया, जिसमें से हिंदू पैसेंजर को उतारकर उन्हें गोलियां मार दी गई। अब यहाँ से पंजाब की खराब सिचुएशन को देखते हुए पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है।
1983 को भिंडरवाले ने अपने काम करने की लोकेशन को गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त में शिफ्ट कर दिया। उसे यकीन था कि यहाँ घुसकर कोई भी इसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर सकता और भिंडरवाले ने काफी असलहा भी जमा कर लिया था। भिंडरवाले की प्लानिंग इसलिए भी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके साथ काफी तजुर्बाकार लोग मौजूद थे, जैसे कि रिटायर्ड मेजर जनरल शाहबेग सिंह। ये भिंडरवाले के फाइटर को ट्रेन कर रहे थे और इनका 1971 की जंग में काफी रोल था और ये गोरेला जंग के काफी माहिर थे। और एक और मेजर जनरल जसवंत सिंह भी को ट्रेन कर रहे थे। अब यहाँ कांग्रेस और भिंडरवाले बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे और यहाँ लड़ाई होना तय थी, मगर इससे कांग्रेस ने एक मर्तबा मामला निपटाने की कोशिश की और अकाली दल के थ्रू भिंडरवाले को एक लेटर लिखा कि जिसमें उन्होंने कहा कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में कुछ चीजें हम मान लेते हैं मगर सारी बातें मानना जो है वो पॉसिबल नहीं है। मगर इस प्रपोजल को पूरी तरह से भिंडरवाले ने रिजेक्ट कर दिया। प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार थी और आर्मी वाले सादा कपड़ों में टेंपल के अंदर जाने लगे ताकि उनके फाइटर्स असलहा और एक्टिविटीज का जायजा ले सकें। और नाज़रीन, कुलदीप सिंह इस ऑपरेशन के हेड थे और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 जून 1984 में पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। लोकल और फॉरेन न्यूज रिपोर्टर्स को हर जगह से उठाकर गवर्नमेंट बस में बिठाकर पंजाब से बाहर कर दिया। लेकिन इस बीच में एक रिपोर्टर जिनका नाम बरहमा शेलिनी था, ये उस टाइम पर अंदर रह गए। उन्होंने उस वक्त रिपोर्ट किया और वो रिपोर्ट टाइम्स ऑफ लंदन में शाये हुई। उन्होंने कहा कि सिखों को गोलियां मारी जा रही हैं और 1000 से भी ज्यादा सिख मारे गए हैं, जबकि गवर्नमेंट ने 600 को मारने का इतराफ किया था। बहरहाल बाद में इन पर डिस इन्फॉर्मेशन का केस भी हुआ। इस ऑपरेशन की फाइट 3 से 6 जून तक चली थी। आर्मी को लगता था कि भिंडरवाले को आसानी से हरा देंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन काफी गलत साबित हुई क्योंकि उनके पास भारी असलहा था, रॉकेट, एंटी टैंक गन्स, स्नाइपर और प्रॉपर एक मिलिट्री की तरह आए थे वो लोग। आर्मी को भी काफी नुकसान हुआ। आर्मी ने एंटी टैंक मंगवाकर 3 अतराफ से हमला कर दिया। अकाल तख्त पर भी अटैक हुआ और ये आर्मी का बहुत बड़ा फैसला था जो बाद में इनको बहुत महंगा पड़ा। दोनों के दरमियान काफी लड़ाई चलती रही। भिंडरवाले के लोग भी आखिरी दम तक लड़ते रहे। सुबह 4 बजे तक आर्मी ने टेंपल पर अपना कंट्रोल ले लिया था। भिंडरवाले और इसके लोगों को तो मार दिया गया था, मगर जब गोल्डन टेंपल की इमेजेस बाहर आई तो सिखों को पता चला कि अकाल तख्त और दरबार साहिब तक को निशाना बनाया गया है। तो इसको देखकर पूरी दुनिया के सिख भड़क गए। आर्मी के 4000 सिखों ने अपने ऑफिसर्स को मार दिया और अमृतसर पहुंचने की कोशिश की। MNA और MPA सिखों ने भी इस्तीफे दे दिए। माहौल काफी खराब हो गया। फिर आर्मी ने इस ऑपरेशन का दूसरा राउंड शुरू किया। इसमें सिर्फ सिखों की तलाशी ली गई। फिर इसके साथ ही हुकूमत ने अकाली दल लीडरशिप को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 1 अक्टूबर 1984 में गोल्डन टेंपल से आर्मी विड्रॉ कर लेती है, लेकिन तब तक काम बहुत बिगड़ चुका था। बहुत सारे लोगों ने गोल्डन टेंपल को डैमेज देखा तो गुरु की कसम खाई कि जिन्होंने ये किया है उन्हें छोड़ेंगे नहीं, इनकी जान लेंगे या फिर इन्हें मारने की कोशिश में ही मर जाएंगे। इनमें ज्ञानी ज़ैल सिंह, इंदिरा गांधी और इनकी फैमिली और आर्मी ऑफिसर्स और इसके अलावा जो लोग शामिल थे। इसलिए वो लोग जिन पर हमले का बहुत ज्यादा खतरा था उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट, गार्ड्स वगैरह दिए गए। सबसे ज्यादा खतरा इंदिरा गांधी को था, इसलिए उन्हें अपने सिक्योरिटी गार्ड्स में से सिख गार्ड्स को हटाने का भी मशवरा दिया गया, मगर उन्होंने कहा कि इससे सिख कम्युनिटी को गलत मैसेज जाएगा और उन्होंने अपने सिख गार्ड्स को नहीं हटाया। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने 18 गोलियां मार दी और फिर 2 बजे उनकी डेथ हो गई। इसके बाद हालात काफी खराब हो गए। हजारों सिखों को कत्ल किया गया, सिखों के गुरुद्वारे जला दिए गए, औरतों के साथ क्राइम हुए, मगर इस कत्ले आम पर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। 1984 को इस कत्ले आम, लूटमार और दंगों के बाद इलेक्शन हुए और राजीव गांधी जीत गए। उन्होंने PM बनते ही कहा कि पंजाब इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने कहा कि अकाली लीडरशिप को जेल से निकाला जाए और इनके साथ एक मुआहदा किया। इसमें एक मेन पॉइंट था कि चंडीगढ़ पंजाब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मगर नाज़रीन, भिंडरवाले की तो मौत हो चुकी थी, मगर इसके मानने वाले अभी भी जिंदा थे और उन्हें ये मुआहदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने सांत लोंगेवाल को कत्ल कर दिया और दूसरी तरफ राजीव गांधी ने कह तो दिया कि वो चंडीगढ़ को पंजाब में शिफ्ट कर देंगे, मगर उन्हें बाद में भजन लाल सिंह ने समझाया कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके हाथ से हरियाणा भी चला जाएगा। इसलिए बाद में राजीव गांधी अपने इस मुआहदे से मुकर गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भिंडरवाले के अकीदतमंद अभी तक जिंदा थे और
कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी इवेंट में खालिस्तान का नारा भी लगता रहता था। और एक मरतबा फिर गोल्डन टेम्पल में भिंडर वाले के लोग कब्जा करके बैठ गए और फिर गवर्नमेंट ने एक मरतबा फिर ऑपरेशन किया, लेकिन इस मरतबा पुलिस ने ये ऑपरेशन किया और गोल्डन टेम्पल को कोई नुकसान नहीं होने दिया। इस तरह ऐसा ऐसा भिंडर वाले के सपोर्टर्स को खत्म कर दिया गया और सिख कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात खुशगवार रखने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की गई। कांग्रेस और अकाली दल मिलकर इस पर काम कर रहे थे। 1996 तक खालिस्तान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया था और हालात काफी कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन फिर 1 जून 2015 को बुरजवार सिंह के गांव के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहब की चोरी हो गई और फिर कुछ ही दिन के बाद उसी गांव के आसपास कुछ ऐसे पोस्टर्स मिलते हैं जिनमें सिख को टारगेट किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब की पेजेस के साथ बेअदबी की जाती है और यहाँ से फिर एक नैरेटिव बन गया कि सिख पर फिर से अटैक हो रहे हैं और साथ में अकालीस भी काफी कमजोर हो चुके थे। और इसी चीज को देखते हुए इंडिया से बाहर खालिस्तान का रेफरेंडम चलने लगा और फिर इस सब के बीच में दीप सिंधु मैदान में उतरते हैं। ये एक फिल्मी एक्टर्स हैं और इन्होंने वारिस पंजाब डे के नाम से एक तंजीम बनाई जिसका मकसद पंजाब को पंजाब के हुकूक दिलाना था। लेकिन पंजाब में इंतखाबात से 5 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है। इस सब के बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की, जो दीप सिंधु का दोस्त है लेकिन कभी इनकी मुलाकात नहीं हुई, मगर ये दुबई से दीप सिंधु के टच में था। दीप सिंधु की मौत के बाद इन्हें वारिस पंजाब डे का हेड बना दिया जाता है। इस पर दीप सिंधु की फैमिली ने कहा कि इसका दीप सिंधु के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, मगर जो अमृतपाल के अकीदतमंद और सपोर्टर थे उन्होंने कहा कि इन्हें दीप सिंधु के लोगों ने ही वारिस पंजाब डे का हेड बनाया है। 29 सितंबर 2022 को ये दुबई से इंडिया आते हैं और इनकी दस्तार बंदी की जाती है जिसमें हजारों लोग आते हैं और इस चीज ने सबको हैरान करके रख दिया क्योंकि इसे जितना लोगों का सपोर्ट मिला है इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है लीडर्स को, मगर कोई दुबई से आए और आकर उसे इतना सपोर्ट मिले ये सबके लिए हैरान कुन था। और इसी तकरीब में 2 खालिस्तानी नारे भी लगे। उन्होंने आते ही कहा कि भिंडर वाले इनका आइडियल है और उन्हीं की तरह मजहब की बातें की, बेअदबी पर बात की, बाल रखने का कहा और ड्रग्स छोड़ने का भी कहा और कहा कि अब जो भी कोई बेअदबी करेगा हमारे धर्म की उसे हम खुद सजा देंगे। सोशल मीडिया पर ये बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और वहाँ पर भी इन्हें अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। अभी 24 फरवरी को जब इनके एक साथी तूफान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तो अमृतपाल सिंह के साथ हजारों लोग निकल के आए जिनके पास बंदूकें तलवारें थी और फिर आखिर पुलिस को अमृतपाल सिंह के सामने झुकना पड़ा और इनके साथी को रिहा करना पड़ा। और इस अजनाला इंसिडेंट ने अमृतपाल को बहुत ही मकबूल कर दिया। ऐसे लोग जो एक नई क़यादत चाह रहे थे पंजाब के अंदर, उन्हें अमृतपाल में एक नया कायद नजर आने लगा और कुछ लोगों को अमृतपाल में भिंडर वाला भी नजर आ रहा है। और अब सोशल मीडिया पर भी इन्हीं का राज है और इसके साथ साथ खालिस्तान आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का जो इशू है ये भी फिर से सर उठा रहा है। अमृतपाल सिंह ने कहा है कि हम अपने हुकूक की मांग कर रहे हैं पीसफुल तरीके से। अब आगे ये मामला कहां तक पहुंचता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पंजाब को एक नया लीडर और शायद एक नया भिंडर वाला मिल